या हुसैन 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 अजल 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 या हुसैन 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 अजल 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رؤيا فاطمة الزهراء سلام الله عليها عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني نازل في بطني ضعفا فقلت له ائتك بالله يا أبت من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء يماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله علي فأتيت بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم إيدك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لندخل معك هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كان راهب جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لندخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كان راهية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من اختار الله تأذن لندخل معك تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لندخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بجدي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فادخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اجتمعوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكة والسكان السماوات وعزتي وجلالي لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين
بينهم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعادن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض إليكم معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط من جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك من اختار الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا بأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال تأذن لي يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد هوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجزنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر أخبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام والله فوتنا وفاشيتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا وفي مهموم إلا فرض الله هما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام والله فوتنا وسعيدنا وكذلك أشيتنا فاضوا وسعيدوا بالدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. आज के इस पाकीज़ा मुसालमे का आगाज हदीस किस्सा से हो चुका। अभी तक जो मोमिन बाहर हैं और मौसम की सख्तियां झेल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो मिदहत के साए में आ जाएं ताकि माहौल, अकीदा और अशार इन तीनों की गर्मी से आपका जिस्म नहीं बल्कि रूह भी गर्म हो जाए। अभी तक जो मोमिन बाहर तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम जल्द अज जल्द हॉल में आ जाएं और जो नौजवान अपने, मैं खून तो नहीं कहूंगा क्योंकि पाक खून ही यहाँ खींच कर लाया है, अपने अकीदत की तहारत का ऐलान करना चाहते हैं, जो नारे लगाने वाले नौजवान हैं, जो शेर व सुखन से दिलचस्पी रखते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो आगे स्टेज के पास आ जाएं ताकि मिदहत गुजार और मिदहत सुनने वालों में ज़्यादा फासला ना हो। हम बिला फसल के मानने वाले हैं, ये हमारी नमाज अकीदत है। नमाज का सलीका ये होता है कि उसमें सफ़ेद दुरुस्त होती हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता। ये भी नमाज अकीदत है, इसमें भी बिखरे हुए अफराद कुछ भले मालूम नहीं होते। लिहाजा जो पीछे तशरीफ रख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बराए करम आगे तशरीफ ले आएँ ताकि बाद में आने वालों को पूरा पूरा मौका मिले। ये तारीखी मुसालमा, आप यकीन मानिए कि यहाँ पर जब से इस मुसालमे का आगाज हुआ है इसकी शोहरत दूर दूर तक गई। आज इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, उसके ज़रिए से इस मुसालमे की शोहरत बहुत दूर दूर तक गई।
न जाने कहाँ कहाँ लोगों ने इसे सुना, पसंद किया, आप लोगों के हक में दुआएं की और हिम्मत अफजाई की कि ऐसे प्रोग्राम में इस किस्म के मुसालमे रखे जाने चाहिए। लिहाजा मेरी एक बार फिर उन तमाम मोमिन से गुजारिश है कि जो बाहर तशरीफ रखते हैं बराए करम वो अंदर तशरीफ ले आए। 4 रोजा इस प्रोग्राम में से 3 रोज तकरीबन गुजर चुके हैं। आज की ये शब हम लोग मुसालमा करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। दूर दराज से शोराए कराम तशरीफ लाए हैं। मैं आपके सामने उनके अस्माए गिरामी पेश कर दूं। मोहतरम जनाब ताज कानपुरी साहब, जनाबे मुशर्रफ हुसैन बस्तवी साहब, तहजीब बुखरानवी साहब, महबूब आलम अंसारी मुरादाबादी साहब, जनाबे साजिद जाफरी साहब, जनाबे इंतखाब जाफरी साहब, ये शोराए कराम तशरीफ ला चुके हैं। ये वक्तन फवक्तन आपके सामने अपना बेहतरीन कलाम पेश करेंगे और मुझे यकीन है कि जब वो अपना कलाम पेश करेंगे तो आपके दोनों हाथ शॉल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत की गर्मी आपको बैठने नहीं देगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम अली वाले हैं। जब अली का जिक्र होता है तो हमारे खून में एक हिद्दत, एक गर्मी पैदा होती है। उसके बाद ये मौसम की हमले ही क्या, तीरों के हमले भी हम पर असर नहीं करते। ये बात पसंद आई आपको तो नारा लगाइए ना। आवाज़ बुलंद, दोनों हाथ उठा कर पूरी तमन्नाई के साथ या अली और अस्सलाम अलैकुम। जी मुंतज़िराने मेहदी ग्रुप ने जो टोकन का इनेकाद किया गया था, जो टोकन रखे थे आप मोमिनीन के लिए, मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात को अहमियत दी। और कल एक ड्रॉ हुआ था आपके सामने और कल से लेकर आज तक में दूसरे 500 टोकन खत्म हो चुके हैं। उसका भी ड्रॉ इस मुसालमे के दरमियान होगा और खुशनसीब भाई बहन कोई एक ज़ियारत के लिए जाएगा और बकिया पैसे रोजे की तामीर के लिए लगाए जाएंगे। तीसरे दौर का आगाज हो चुका है टोकन का, टोकन मौजूद है और मुझे यकीन है कि कल का प्रोग्राम खत्म होते होते वो 500 टोकन भी खत्म हो जाएंगे, मुझे यकीन है। अभी तक जिन लोगों ने वो टोकन नहीं लिए हैं वो जरूर जाके टोकन ले लें। आपको जाकर अपने हाथ से टोकन उठाना है, उस पर जो कुछ भी फिगर होगा उतने पैसे आपको अदा करने हैं और आप डायरेक्ट सवाब में शामिल हो जाएंगे। या तो आप जायर बन जाएंगे या किसी जायर को भेजने का जरिया बन जाएंगे या आपका वो पैसा रोजे की तामीर में लगाया जाएगा। तो इस यकीन के साथ तीसरे दौर का आगाज हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ टोकन बच जाते हैं, वो मुकम्मल 500 नहीं होते हैं, तो वो सारी रकम रोजे की तामीर के लिए लगा दी जाएगी। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और खुशखबरी आप हजरात के लिए कि इस तमाम प्रोग्राम के स्पॉन्सर मोहतरम जनाब नासिर डोसानी साहब की तरफ से इस मुसालमे में भी एक अलग से ड्रॉ होगा। आप हजरात के दरमियान कुछ पर्चियां बांटी जाएंगी आखिर में और उसके लिए जो जो ज़ियारत का मुश्ताक है वो यहाँ पर बैठा रहेगा, वो पर्ची हासिल करेगा और मुसालमे के दौरान कुरानदाजी होगी, उसमें से भी किसी खुश नसीब को ज़ियारत पर भेजा जाएगा। कितने बेहतरीन मौके हैं। अल रज़ा टूर की जानिब से भी टोकन कूपन ज़ियारत के वहाँ पर दस्तयाब हैं उनके स्टॉल पे और वो बहुत ही कम कीमत में आप हजरात वहाँ से भी लें। उसका भी जो है पैसा या ज़ायर को भेजने के लिए जाएगा या फिर किसी ज़ायर कोई ज़ायर वहाँ पर बनेगा या रोज़े की तामीर के लिए लगाया जाएगा। तो ये बेहतरीन अमल है, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पता नहीं सांसें कब तक साथ हैं, ये सवाब जारिया है। अगर आपका दिया हुआ पैसा अगर इस रोज़े की तामीर में लगता है तो जब तक ये रोज़ा यहाँ पर रहेगा
वो करीम इब्ने करीम आप नहीं आपकी नस्लों को भी नवाजते रहे। तो बढ़ चढ़ के आप इजलास में हिस्सा लें। जिन लोगों ने ज़ियारत का इंतजाम किया है आप वहां से कूपन लें, टोकन लें, ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो और हमारा कोई ना कोई भाई बहन हमेशा ज़ियारत के लिए जाता रहे। आइए हज़रात, इसके बाद दुआया कलमात, हदीस किस्सा के बाद दुआया कलमात से हम आगाज करें। और ये दुआया कलमात अदा करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस कमेटी के बहुत ही सरगर्म रुकन मोहतरम जनाब आमिर अली साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो दुआया कलमात से मोमिन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐ रब्बे जहां पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शबे से भर दे। ऐ रब्बे जहां पंजतने पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब ने मज़ाहिर की नजर दे। कम सिन को मिले वलवल औन मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे। माओ को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। जो चादरे ज़ैनब की अज़ादार है मौला, महफूज रहे ऐसे ख़वातीन के पर्दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शब्बीर के खातिर हो घर दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। ऐ रब्बे जान सैयद सज्जाद का सदका, ऐ रब्बे जान फातिमा सुरा का सदका, बीमार हो जो को मुकम्मिल शिफा दे। मुफलिस पे जरो लालो जवाहिर
वारिस, मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। जाती है अगर जान तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे कभी आँच न आए। मायूस न कर फातिमा के घर का तसद्दुक़, अब्बास के सदके में मुरादों के जोहर दे। तू रखना सलामत मेरे हादी को हमेशा, हजरत की ज़ियारत से मुशर्रफ हमें कर दे। गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर, मेरे मौला गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर। शब्बीर का गम बार दो हमें कर दे। ऐ रब्बे जहां पंजतने पाक का सदका, बीमार हो जो उनको मुकम्मिल शिफा दे। खुदावंदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ना माध्यम थकी दयाल हुकूमत ने स्थापना करी। आप इस्लाम ने मुसलमानों ने तेना थकी इज्जत अता कर, मुनाफिकिन अहले मुनाफिकिन ने सर निगू करी। आप सत्यना साम्राज्य मोतारी ताबेदारी करवानी प्रेरणा अपना वर्ग मोने स्थान। आप अने तारी हिदायत ना मार्ग तरफ मार्गदर्शन करवा वालों मोमने प्रवेश। आप ये महान मर्तबा वाला इमाम ना वास्ता थी दुनिया ने आखिरत में इज्जत ने बुजुर्गी ने महानता थी तू नवाजिया। इमाम ना ज़हूर मुतादिल करिया, नासिर व मददगार मुतमार शुमार करिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जल्दी तैयार कर दो, जल्दी तैयार ऊपर है ना ऊपर मुकी जयगम हुसैन जैदी फंदेड़ी सादा सैयद जयगम हुसैन जैदी आ चाल से मुझू बड़े बड़े वाला सुनेगा भाई
आगे तशरीफ ले आए हजरत, आगे काफी जगह है, यहाँ आ जाइए। तमाम तर तारीफें उस खुदा
वहदहू ला शरीक, जो कायनात का बनाने वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम ज़ाते हज़रत मोहम्मद और उनकी आले पाक पर कि जिनके सदक़े में ये कायनात खल्क हुई। इस मुसालमे का आगाज हदीस किस्सा से हो चुका, दुआया कलमात अदा कर दिए गए। अब एक मरहला है नाते रसूल मकबूल का। कौन रसूल? रहमतुल्लिल आलमीन रसूल। कौन रसूल? फ़ख्र अंबिया रसूल। जिस रसूल के लिए कायनात खल्क हुई, जिस रसूल के ज़रिए हमें मोहम्मद आले मोहम्मद मिले, हम कितनी बड़ी सादत है कि हम उनका नामे नामी अपनी ज़बान से ले रहे हैं। शायर ने कहा कि परवरदिगार तेरी मेहरबानियों का शुक्र, परवरदिगार तेरी मेहरबानियों का शुक्र, कांटों के दरमियान खिलाए हैं तूने फूल, तो तेरी इनायतें हैं कि हम बोलने लगे, वरना कहां जुबान हमारी कहां रसूल, वरना कहां जबान हमारी कहां रसूल। आइए हजरात, इस मुक़द्दस इबादत के लिए हमारे मेहमान शायर जो बहुत दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, उनमें से एक नगीना मैं आपके सामने हवाले कर रहा हूँ। मेरी मुराद है महबूब आलम अंसारी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाहे सरवर कायनात में हदियाए नाते पाक पेश करें। मैं नाते अहमद मुख्तार पढ़ने वाला हूँ, तुम अपने ज़ौक़ समात को बावजू रखना। आप हज़रात बावाज़ बुलंद सलवात का इस्तक़बाल फरमाएं। पहले मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद चंद अशार बारगाह रिसालत महब में एक बार ज़रा और बाबाज़ बुलंद नारे सलावत भेज दें आप हज़रात। के साइंस से क्या क्या नया सामान बना है, साइंस से क्या क्या नया सामान बना है, और खाके दर सरकार से इंसान बना है, खाके दर सरकार से इंसान बना है, इंसान बना है। अरे खाके दर सरकार से इंसान बना है, इंसान बना है। और जब उनके अरे जब उनके पसीने की समेटी गई खुशबू, अरे उससे कोई बूज़र कोई सलमान बना है, उससे कोई बूज़र कोई सलमान बना है, उससे कोई बूज़र कोई सलमान बना है, सलमान बना है। नात के पेश कर रहा हूँ, लगता है कि ये मजमा बड़ा सुस्त लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के समाते बड़े मशहूर हैं,
ये आपके ज़ौक़ समात है, मालो सलामत रख के देखिए हज़रात। एक मतलब अपनी शेर में हाजिर करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाते कोई कैसे मेरे आका की बराबर निकले, बराबर निकले, बराबर निकले। कोई कैसे मेरे आका की बराबर निकले, बराबर निकले। जब गिरा उनका पसीना तो पैगंबर निकले, पैगंबर निकले। जब गिरा उनका पसीना तो पैगंबर निकले, पैगंबर निकले, पैगंबर निकले। जब गिरा उनका पसीना तो पैगंबर निकले, पैगंबर निकले। और इल्म के शहर का इल्म के शहर का दरवाजा वो कैसा होगा। अंबिया भी जहां सर अपना झुका कर निकले, अंबिया भी जहां, अंबिया भी जहां, अंबिया भी जहां सर अपना झुका कर निकले, झुका कर निकले। अंबिया भी जहां सर अपना झुका कर निकले, अरे झुका कर निकले। और देखिए शेर हाजिर करता हूँ, देखिए शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि अंबिया भी जहां सर अपना झुका कर निकले, झुका कर निकले। और आज भी कांधों पर बिस्तर लिए फिरते हैं वो लोग, अंबिया भी अंबिया भी जहां सर अपना झुका कर निकले, झुका कर निकले, झुका कर निकले। आज भी कांधों पर आज भी कांधों पर बिस्तर लिए फिरते हैं वो लोग, होके रुसवा तेरी मस्जिद से जो बाहर निकले, बाहर निकले। होके रुसवा तेरी मस्जिद से जो बाहर निकले, बाहर निकले। होके रुसवा तेरी मस्जिद से जो बाहर निकले, बाहर निकले। और जुस्तुजू कब से नबी को थी अली की महबूब, अरे जुस्तुजू कब से अरे जुस्तुजू कब से नबी को थी अली की महबूब। जब उन्हें ढूंढा तो वो काबे के अंदर निकले, जब उन्हें ढूंढा तो अरे जुस्तुजू कब से जुस्तुजू कब से नबी को थी अली की महबूब। जब उन्हें ढूंढा तो वो काबे के अंदर निकले, अंदर निकले, अंदर निकले। अच्छा एक मतलब और चंद शेर और मैं हाजिर करता हूँ, नात के पेश कर रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक तवज्जो चाहूँगा ख़ास तौर से,
ज़रा सलावात भेज दीजिए आप हजरात, मैं शेर पेश करूँ। देखिए एक मतलब हाजिर करता हूँ जहाँ जहाँ हजरात ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाया हजरात। जिसके दिल में गरिश्क़ मुस्तफ़ा नहीं होता, उसका कोई दुनिया में आसरा नहीं होता। अरे उसका कोई दुनिया में आसरा नहीं होता, उसका कोई दुनिया में आसरा नहीं होता। और पूरी तरीके से आप तवज्जो फरमाएं। देखिए खास तौर से शेर हाजिर करता हूँ, नात का शेर पेश कर रहा हूँ कि उसका कोई दुनिया में आसरा नहीं होता, और नात मुस्तफ़ा पढ़ कर बोले ये अबू तालिब, नात मुस्तफ़ा पढ़ कर अरे बोले ये अबू तालिब कि इनका चाहने वाला अरे बेवफा नहीं होता, इनका चाहने इनका चाहने वाला बेवफा नहीं होता। अरे इनका चाहने वाला बेवफा नहीं होता, इनका चाहने वाला बेवफा नहीं होता। ये बहुत कीमती शेर आपकी नजर कर रहा हूँ हुजूर, ये मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, यहाँ से महसूस कीजिए, तवज्जो चाहूँगा कि इनका चाहने वाला बेवफा नहीं होता, बेवफा नहीं होता, और मुस्तफ़ा भी महशर में अरे आसियों से कह देंगे कि सैयदा बिना कोई अरे फैसला नहीं होता, सैयदा बिना कोई फैसला नहीं होता, सैयदा बिना कोई फैसला नहीं होता, सैयदा बिना कोई फैसला नहीं होता। और आज के मुसलमान को किस तरह से समझाएं कि सैयदा बिना कोई अरे फैसला नहीं होता, और आज के मुसलमान को अरे किस तरह से समझाएं कि रन से भागने वाला अरे रहनुमा नहीं हो। आज के मुसलमान को किस तरह से समझाएं, आज के मुसलमान को किस तरह से समझाएं कि रन से भागने वाला रहनुमा, मक्ता सुन लीजिए आप हजरात,
रहनुमा नहीं होता। और माल जो यतीमों का खा के पलते हैं महबूब, उनमें जंग करने का हौसला नहीं। देखा आपने हजरत, ऐसे ऐसे नगीने मेरी दामने निजामत में हैं। अभी ये दोबारा आपके सामने आएंगे। अभी तो उन्होंने नाच से आपको ये एहसास दिलाया है कि आप आमादा हो जाएं इनको दोबारा सुनने के लिए। ये जब दोबारा आएंगे तो अपने बेहतरीन कलाम के साथ बारगाह अहले बैत में नजराने अकीदत पेश करेंगे। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया इन्होंने। नात के ताल्लुक से 4 मिसरे मुलाहिजा फरमाएं। मैंने किसी मजलिस में 4 मिसरे पढ़े थे, लेकिन इतना मजमा नहीं था, मैं उसे दोहरा दूं कि नात कहनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो। नात कहनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस रूए जमीन पे सबसे पहला नात गो शायर सरकार जनाब अबू तालिब। नात कहनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो, नात कहनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो, और पाकीज़ा ख्यालात की दौलत मांगो। नात कहनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो और पाकीज़ा ख्यालात की दौलत मांगो। तो जब ये मिल जाए तो एक शुक्र का सजदा कर लो। अब जनाबे अबू तालिब से इजाजत मांगो। अब जनाबे अबू तालिब से इजाजत मांगो। सैयदा बिना कोई फैसला नहीं होता, बिना सैयदा के कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि रसूल मकबूल फरमा गए हैं कि जिससे सैयदा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी। सैयदा बिना कोई फैसला नहीं होता। तो ज़हन इंसान में समाए सैयदा मुमकिन नहीं, ज़हन इंसान में समाए सैयदा मुमकिन नहीं। तो तेरी मिदहत ऐ जनाबे फातिमा मुमकिन नहीं, तेरी मिदहत ऐ जनाबे फातिमा मुमकिन नहीं। तो गासिबों को तुम रजी अल्लाह कहते ही रहो। तशरीफ लाएं दिखा एक बाबा से बुलंद नारे सलवात में। ज़हन इंसान में समाए सैयदा मुमकिन नहीं, तेरी मिदहत ऐ जनाबे फातिमा मुमकिन नहीं। तो गासिबों को तुम रजी अल्लाह कहते ही रहो, उनसे हो जाए कभी राजी खुदा मुमकिन नहीं, उनसे हो जाए कभी राजी खुदा मुमकिन नहीं। आज के इस मुसालमे के जो सदर हैं मोहतरम जनाबे नासिर अली डोसानी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ये जिम्मेदारी कबूल करें। नारे सलावत। हजरात, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हजरात सुन रहे हैं। को शायद ये महफिल तारीखी महफिल होने वाली है कानोदर की सरजमीन की, क्योंकि मैं कुछ चेहरे ऐसे देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो दिलचस्पी उनके चेहरों से झलक रही है कि वो मिदहत मोहम्मद आले मोहम्मद सुनना चाहते हैं। नाते पाक हो चुकी, अब सिलसिला आगे बढ़ता है। ये भी बहुत बड़ी सआदत है कि हम उनका जिक्र अपनी ज़ुबान से करें। ये उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि हम अपने लबों से उनका नाम लें। अली का जिक्र और मेरी ज़ुबान है, मुलाहिज़ा फरमाएंगे, अली का जिक्र और मेरी ज़ुबान है। अरे मेरा माबूद मुझ पर मेहरबान है। अली का जिक्र और मेरी ज़ुबान है, मेरा माबूद मुझ पर मेहरबान है। तो नजफ को देखकर अक्सर ये सोचा, ये रोजा है तो फिर जन्नत कहां है। नजफ को देखकर अक्सर ये सोचा, ये रोजा है तो फिर जन्नत कहां है।
अभी महबूब आलम अंसारी साहब ने कहा था कि काबे में वो आया है, उसे तलाश करते हैं, वो हमें काबे में मिला। एक तसव्वुराती सिर्फ माहौल बनाने के लिए 4 मिसरे, उसके बाद मैं सिर्फ शायर का नाम बुलाऊंगा। इस मुसालमे को चलाने की जिम्मेदारी आपकी। आप जैसे शायर को पढ़वाएंगे शायर वैसा पढ़ेगा, आप जितना पढ़वाना चाहेंगे शायर उतना पढ़ेगा। जब महफिल चल रही हो तो निजामत की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ राब्ते का काम करूंगा, यहां पर आके शायर का नाम पुकारूंगा, फिर आप जाने शायर जाने। ठीक है, इस बात पे तैयार हैं आप लोग? काबे का जिक्र हो रहा था कि जिसे ढूंढा वो काबे के अंदर मिला। बहुत अच्छा शेर कहा महबूब आलम अंसारी साहब ने। एक तसव्वुराती गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं, तवज्जो का तालिब हूं। अब दो माबूद के दरमियान एक तसव्वुराती गुफ्तगू है, देखेंगे नासिर भाई, कि कहा मैंने खुदाया वो तो तेरे खास बंदे थे। कहा मैंने खुदाया वो तो तेरे खास बंदे थे, तू अपने घर को इब्राहिम का रोजा बना देता। क्या सुन रहे हैं आप हजरात? कहा मैंने खुदाया वो तो तेरे खास बंदे थे, तू अपने घर को इब्राहिम का रोजा बना देता। तो जवाब आया अली की आरज़ू काबे को थी, वरना विलादत जिस जगह होती वही काबा बना। ये अली के नाम का नारा ऐसे नहीं लगना चाहिए। दोनों हाथ बुलंद कर, या अली। जी हां, ये तरीका है। जज़ाकल्लाह, मिलजुल के। या अली, मौला सलामत रखे। मिलजुल के, या अली। अच्छा हजरत, जिन जिन हजरात ने अपने हाथ में घड़ी पहनी है जरा अपना हाथ उठाएंगे। अपने हाथ में, जिन जिन के हाथ में घड़ी है, माशाल्लाह। ये एक तरीका है, आपने दुनिया में देखा है ना, कि पूछा जाता है कि जिसके हाथ में घड़ी है वो हाथ उठाएं, जिसके हाथ में कलम है वो हाथ उठाएं, जो गर्म कपड़े पहन के आए हैं वो अपना हाथ उठाएं। तो हम इजहार करते हैं कि हाँ हमारे पास ये है। यही सवाल होगा कि मोहब्बत अली किसके किसके पास है। इसीलिए हाथ उठा के नारे लगाए जाते हैं। जज़ाकल्लाह। हैदरी, दिल बोला, ये नारा जरूरी क्यों है? ये नारा जरूरी इसलिए है कि जान में आती है एक जान अली कहने से। एक एक मिसरे पे तवज्जो का तालिब हूं, जितने यहां पर मौजूद है, यहां से लेकर वहां तक
आप हजरात मेरी तरफ मुतवज्जे रहें कि जान में आती है एक जान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। जान में आती है एक जान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। खत्म कर लेता हूं कुरान अली कहने से, खत्म कर लेता हूं कुरान अली कहने से। अरे भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से। तो खुद नबी ने कहा, खुद नबी ने कहा खैबर में ये 40वें दिन, अरे मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से। मौला सलामत रखे आप तमाम हजरात को। मुंसजमीन की तरफ से गुजारिश है कि जो हजरात आगे बैठे वो थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि पीछे काफ़ी अफराद खड़े हुए हैं। आप हजरात नारे सलवात बुलंद करते हुए आगे आ जाएं। सलामत रहिए अली वालों, बिल्कुल थोड़ा आगे आ जाइए, काफी बाहर मजमा है। अभी तो ये कादिर है ना, मौला अली मौला। जान में आती है एक जान अली कहने से, जान में आती है एक जान अली कहने से। खत्म कर लेता हूं कुरान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से। आदमी बनता है इंसान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। तो खुद नबी ने कहा खैबर में ये 40वें दिन, मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से। तो या अली कह के जरा देख लो दाएं बाएं, या अली कह के जरा देख लो दाएं बाएं, अरे कौन होता है परेशान अली कहने से। जिंदाबाद। या अली कह के जरा देख लो दाएं बाएं, कौन होता है परेशान अली कहने से। आप हजरात मुकम्मल तौर पर बेदार हैं। मेरे फहरिस्त में कुछ शोराए कराम हैं जिन्हें आपको सुनना है। आप इसी बेदारी का सबूत देते हुए उन्हें सुने। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब काजिम हैदर सल्लमहू से कि तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद कासिम सल्लमहू
एक नन्हे मिदहत खां हैं, वो आपके सामने आएंगे और अपनी नस्लों की तहारत का सबूत पेश करेंगे। आप हजरात की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसकी हिम्मत अफजाई फरमाएं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हेलो हेलो चेक। हाजिरान महफिल सलाम अलैकुम। चार मिसरे समात फरमाएं। हक बात का कायल हूँ, नहीं जिद पे अड़ा हूँ। हक बात का कायल हूँ, नहीं जिद पे अड़ा हूँ। बच्चा बच्चा हूँ मगर इल्म में मुफ्ती से बड़ा हूँ। बच्चा हूँ मगर इल्म में मुफ्ती से बड़ा हूँ। तो मुल्ला मुल्ला मेरे सवाल का क्या खाक दे जवाब। मुल्ला मेरे सवाल का क्या खाक दे जवाब। मैं तो गदीरे खुम के मदरसे में पढ़ा हूँ। बुग़्ज़े अली में कोई भी दुश्मन पर भल चैन न पाएगा। बुग़्ज़े अली में कोई भी दुश्मन पर भल चैन न पाएगा। बुग़्ज़े अली में कोई भी दुश्मन पर भल चैन न पाएगा। जब भी लगेगा नारे हैदर जल जल के मर जाए। जब भी लगेगा नारे हैदर जल जल के मर जाएगा। साफ दरे जन्नत पे लिखा है, साफ दरे जन्नत पे लिखा है, दुश्मन हैदर दूर रहे। साफ दरे जन्नत पे लिखा है, दुश्मन हैदर दूर रहे। साफ दरे जन्नत पे लिखा है, साफ दरे जन्नत पे लिखा है, दुश्मन हैदर दूर रहे। जिसके लबों पर नादे अली है बस वही अंदर जाएगा।
जिसके लबों पर नादे अली है बस वही अंदर जाएगा। दिल ये कहता है बार बार आए, दिल ये कहता है बार बार आए, आए आए बाए तेरा माए, आए आए बाए तेरा माए। तो मुश्किलों मुश्किलों मेरे पास आया करो, मुश्किलों मुश्किलों मेरे पास आया करो, ताकि लब पर अली का नाम आए, ताकि लब पर अली का नाम आए। क्या कहने। हजरत, ये थे मोहम्मद कासिम सल्लमहू। मैं इनकी तरफ से 4 मिसरे आपको सुना दूं कि शब्बीर का शैदा हूं मेरा नाम है कासिम, शब्बीर का शैदा हूं मेरा नाम है कासिम, हर रुख से खरा हूं मुझे खोटा न समझना। शब्बीर का शैदा हूं मेरा नाम है कासिम, हर रुख से खरा हूं मुझे खोटा न समझना। तो अकबर के गुलामों से टकराना बड़ी बात, असगर के गुलामों को भी छोटा ना समझना। अकबर के गुलामों से तो टकराना बड़ी बात, असगर के गुलामों को भी छोटा ना समझना। हज़रत, अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि आपका ये जोश, ये खरोश, ये वलवला, ये अकीदा पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 1000 से ज़ायद स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं। ये इंटरनेट के जरिए जो है रिले किया जा रहा है। तो आपको इस महफिल को कितना कामयाब बनाना है ये आप जाने। आइए हजरात, मैं मुनाफिकीन की नींदें हराम कर देंगे। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। तो खुदा तो बाद में दोज़ख में तुमको झोंकेगा, मैं सुबह शाम यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। आइए हजरत, आप हजरत बेदार हैं। इसी बेदार समातों के हवाले हमारा अगला मदह मेरी मुराद है मोहतरम जनाबे मुनव्वर दामानी साहब से क्यों तशरीफ लाएं। जनाबे मुनव्वर दामानी, आप हर आने वाले शायर का इस्तकबाल बावाज़ बुलंद सलवा से करें। हाज़िरीन महफिल सलाम अलैकुम। बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरे छोटे शहजादे का जिक्र हो रहा था, उसके दिमाग में आ गए 4 मिसरे। सुनिएगा भाई, मिसरे देखिएगा कि मज़ाक़े तीरे सितमगर उड़ा के आए हैं। सुनिएगा चौथा मिसरा इंशाल्लाह, कि मज़ाक़े तीरे सितमगर उड़ा के आए हैं, ज़ईफ़ बाप की हिम्मत बढ़ा के आए हैं। सुनिएगा 2 मिसरे, कि मज़ाक़े तीरे सितमगर उड़ा के आए हैं,
ज़ईफ बाप की हिम्मत बढ़ा के आए हैं, तो नजर उतार लो असगर की दौड़कर यूसुफ ये मौत को भी सुलेखा बना के आए हैं। नजर उतार लो असगर की दौड़कर यूसुफ।